would now like to request PIFA Director Sanjay Kotkar to please come forward. He has some people to appreciate. I will call it an appreciation because if I call it vote of thanks, it means we are concluding the meeting. But we deliberately keep it in between because you can hear us out that who are the people whom we want to thank. Over to him. Yeah. Good evening, everyone. It has been such a honor to be a part of this wonderful event. On behalf of PIPA team, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speakers, Mr. Chandra Prakash Padiyar, uh, Mr. Avinash Bhatnagar, and Mr. Krishna Sharma. I would also like to thank AMC, including Tata Mutual Fund, Franklin Templeton AMC, and HDFC Mutual Fund for their wholehearted support and sponsorship for this investor awareness program. I would also like to thank Genesis Advertising, Ruta Advertising, Mandar Pandit, Tushar Joshi, 100% PR, and Mr. S.K. Jain from SP College for the giving this venue for hosting the event. Finally, I would like to thank all investors and the audience for showing overwhelming response and making this event grand success. Sincere thanks to PIFA core team who had handled the event. Thank you once again, all of you. Thank you, Sanjay ji. Many of you, have you found this, the earlier presentation a little bit technical? Some of you who are young investors, because I can see some young investors, did you find it a little technical? Well, nevertheless, don't worry much about it, but yes, that is of the need also. Those facts and figures have to be shown, and the current situation, the idea was to give you some information about the current situation. क्योंकि क्या है ना कि बहुत से शायर लोग कुछ लिखते हैं, वो अभी एक शायरी जो है इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, दैट इज़ लौट आएंगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है. लौट आएंगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल कर रहो दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है. तो ये कुछ इम्तिहान चल रहे हैं हमारे, बट उन्होंने बहुत अच्छे से आपको उससे वाकिफ़ करा दिया कि ये जो कुछ चल रहा है, येस इट इज़ शॉर्ट टर्म, बट द लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑलवेज रिमेन्स इंटैक्ट. मूविंग अहेड वी हैव द वेरी इसीलिए जो एक अगला सेशन रखा है ना, वो स्टोरी टेलिंग का रखा है. So storytelling is the most powerful way, and it helps to express the most complex ideas in the most digestible ways. So on that note, I would like to invite PIFA Director Anupama Zuvekar to introduce our second speaker of the day. Please welcome her. Good evening, everyone. It gives me great pleasure to introduce Mr. Avnish Bhatnagar. Mr. Avnish is the VP and co-head India Retail Sales at Franklin Templeton. He is responsible for the sales function and provides strategic direction to the sales team. Mr. Avnish is also responsible for the West and East regions, Retail Advisory Services team, and the internal sales channel. He joined Franklin Templeton in 2004 and has worked in different geographies with the firm over the last 17 years. Prior to joining Franklin Templeton, he has worked with ICICI Bank as the regional head investments and has a total work experience of over 24 years in the financial services industry. Mr. Avnish has completed BCom and PGDBA from Lucknow University. In his free time, he enjoys playing sports and traveling. Please welcome Mr. Avnish for listening to Nivesh Ki Kahaniyan. Thank you, Anupama ji. So you will be speaking from the podium? Yeah, okay, fine. So just welcome with a big round of applause, Mr. Avnish. Good evening, everyone. And so first of all, let me take this opportunity to thank all the PIFA core committee founding members for giving us this opportunity to come and interact with all of you this evening. And it is a great pleasure to see the house all full. And I'm sure that's the pedigree that PIFA has built over the last 10 years in terms of organizing the investor awareness program. So a big round of applause to all the organizers at PIFA. So, जैसा कि मेरा टाइटल है और बोला गया कि अभी माहौल चंद्र प्रकाश ने थोड़ा
टेक्निकल कर दिया था और थोड़ा डराया भी हमको कि अगले 2 साल अच्छे नहीं लग रहे हैं। बट एज अ सेल्स पर्सन हमारा काम मार्केट को देखना नहीं है, हमारा काम ये है कि हम आपको, हमारे निवेशकों को लंबे समय तक कैसे इन्वेस्टेड रख सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और उसके लिए आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में कि it's not about what return we are expecting, where we are investing. I think the most important part is how do we remain disciplined, how do we control our emotions, and how do we control our behavior. I think that is more critical to create long-term wealth. ना कि मार्केट किधर लगता है, किधर जा रहा है, या मार्केट क्या लगता है। हम लोग जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, टिपिकली वी ट्राई टू एसोसिएट इट विद स्टॉक मार्केट, एंड इट्स राइट ऑल्सो, बिकॉज अगर हमको जैसे बात किया इन्फ्लेशन को बीट करना है, हमको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, अपने गोल प्लानिंग करनी है, एंड इफ़ यू हैव टू क्रिएट वेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल by avoiding equity as an asset class. And so up in the next 35-40 minutes what I will do is कुछ कहानियों के ज़रिए I will try and take you to some lessons that we can correlate to our investment that we do through mutual funds or through directly अगर भी करते हैं. But large part of that messaging that I would want to leave behind with all of you through these 4 or 5 stories जो मैं सुनाऊंगा आपको, और उनका क्या हम कोरिलेशन कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर से. आई होप दैट द 2-year पिक्चर दैट वी जस्ट हर्ड विल वैनिश फ्रॉम योर माइंड, एंड आप मोर कॉन्सेंट्रेट करोगे कि 2047 में हम कहाँ पे होंगे. तो मेरी ये जर्नी अब यहाँ से शुरू हो रही है, जो हम आपको 2047 तक लेके जाएंगे यहाँ से. सो विद दैट लेट मी, आई थिंक बोला अभी सर ने भी कि कहानियाँ अगर हम सुनाते हैं वो ज़्यादा रिलेट करती हैं. फैक्ट्स बहुत सारे देखिए अभी हमने, दैट इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट. फैक्ट्स टेल बट वी बिलीव स्टोरीज सेल. तो मैं एक एज अ सेल्स पर्सन हियर, इफ़ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मेरा काम यही है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊं जो आपको थोड़ा कन्विंस कर सकें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए. सो दैट्स व्हाट आई विल स्पेंड द नेक्स्ट 30-35 मिनट्स. एंड स्टोरी सुनाने का सबसे आई थिंक ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ हमको कन्विंस कर रही है, लाइक आई सेड, फैक्ट्स तो हैं बट पीपल टेंड टू फॉरगेट फैक्ट्स, बट कहानियाँ याद रखते हैं. तो हम बहुत सारे फैक्ट्स की बात करेंगे, बहुत सारे नंबर्स की बात करेंगे, बहुत सारे डेटा की बात करेंगे कि ये सही है, ये इस टाइम पे सही था, ये आगे जाने वाले टाइम में सही होगा. बट वी डू लिसन टू फैक्ट्स, बट हमको आगे जाके याद नहीं रहते हैं. बट याद क्या रह जाता है अगर हमको स्टोरी या कहानी के ज़रिए वो चीज़ें बताई जाएँ. सो व्हाट आई बिलीव इज़, एंड ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है, एंड आई थॉट इट्स वेरी एप्ट टू पुट इट हियर बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, कि अगर हम कोई चीज़ को इतना सिंपल बना दे कि एक 6 साल के बच्चे को भी हम उसको समझा सकें, तो आई थिंक देन आवर जॉब इज़ डन इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस, क्रिएटिंग दैट education that we are here for our investors in terms of why long-term investment is very important. So with that, let me get into my first story, which is called Leap of Faith. So ये एक आदमी आप देख रहे हो डेजर्ट में, ही काइंड ऑफ लॉस्ट हिज वे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था कहाँ जाना है. चलते चलते रेगिस्तान के अंदर थक हार के उनका पानी, वाटर फ्लास्क दैट ही हैड, वो भी खाली हो गया, पानी नहीं मिल रहा था, और बहुत थक हार के वो ढूंढ रहे थे कि क्या करना है, अब मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा. उनकी सारी आशाएं जो थी वो निराशाओं में बदलती जा रही थी. एंड ही वॉज ट्राइंग टू सी हाउ कैन आई सर्वाइव, वेयर विल आई गेट वाटर. तो चलते 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 रेगिस्तान में ही वॉज वेरी एग्जैस्पिरेटेड, बट कहीं पे उनको आगे एक हट दिखा, तो उनकी थोड़ी उम्मीदें जागी कि जो है, अरे वहाँ पे जाके देखता हूँ, शायद मेरे को पानी मिलेगा पीने के लिए, एंड आई विल बी एबल टू सर्वाइव. सो ही रीच दैट हट, एंड वहाँ पे जाके क्या देखते हैं कि एक वाटर पंप है, एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि वाटर पंप है, अब मेरे को पानी पीने को मिल जाएगा, एंड आई विल बी एबल टू देन सर्वाइव एंड कंटिन्यू माई जर्नी. बट अनफॉर्चुनेटली टू हिज डिसअपॉइंटमेंट और टू हिज सरप्राइज, वो वाटर पंप में पानी नहीं था. सो ही थॉट अरे अब मेरे को एक आशा की किरण दिखी थी, लेकिन वो आशा की किरण चली गई है क्योंकि पानी नहीं आ रहा है हैंड पंप में. एंड एट द सेम टाइम देन ही ऑल्सो सॉ कि वहाँ पे एक पानी का बॉटल भी हैंड पंप के साथ में रखा हुआ है.
एंड ही गॉट अ लिटिल मोर एक्साइटेड कि चलो वापस से मेरे को एक पानी का बॉटल दिखा है, मैं पानी पीता हूँ. तो सो ही वेंट एंड पिक्ड अप द बॉटल, एंड एज ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द बॉटल, उस पर एक नोट लिखा हुआ था. तो बॉटल पे नोट लिखा हुआ था कि अगर आप इस बॉटल का पानी हैंड पंप में डालेंगे तो हैंड पंप से पानी आना चालू हो जाएगा. सो ही वॉज इन बिग डिलेमा कि अब मैं पानी पीऊँ, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है, प्यास लगी हुई है, मैं एकदम मरने वाला हूँ, पानी पीऊँ कि मैं हैंड पंप में पानी डालूँ. सो ही हैड टू टेक अ डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं ये रिस्क लूँ कि नहीं लूँ हैंड पंप चालू करने के लिए. एंड ही टुक दैट डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि लेट मी ट्राई. एंड उसने बॉटल का पानी हैंड पंप के अंदर डाला, एंड तुरंत ये गगलिंग की आवाज़ आई, एंड द हैंड पंप स्टार्टेड gushing with water. So he drank the water, he filled his flask with the water, and एक और नोट लिखा हुआ था बॉटल के ऊपर कि भाई आप जब जाओगे यहाँ से, आपका पानी आपने पी लिया है, प्लीज़ ये बॉटल भर के जाना, ऑब्वियसली किसी और के काम आ सकती है. सो ही फिल्ड दैट बॉटल एंड लेफ्ट इट देयर. बट जाते जाते ही थॉट, मेरे को ये जो डिलेमा हुआ था कि मैं पानी हैंड पंप में डालूं कि नहीं डालूं, वो दूसरे को ना हो, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक और नोट बॉटल पे लिख दिया, बिलीव मी इट वर्क्स. सो दैट कि अगला आदमी आए तो उसको कोई संचय नहीं रहे, कोई डिलेमा नहीं रहे कि बस पानी डालूंगा हैंड पंप में तो हैंड पंप चल जाएगा और मेरा प्यास बुझ जाएगा. So this is, I think, the story why I thought is very important is at all points of time when we have to invest in equity markets, and we've seen the chart that Chandra Prakash had shown, the first chart itself, कितनी volatility है, कितने उतार चढ़ाव हैं. तो ये रिस्क जो है और डिसीजन लेना वो डिलेमा के टाइम पे कि हम इन्वेस्टेड रहें या हम एग्जिट करें, is always a question that we have to take when we are investing in equity markets. So I think that is where this story is very contextual to say कि अगर हमको leap of faith लेना है और market में invested रहना है तो risk के बिना वो काम नहीं होगा. And we have to take that decision, we have to take that leap of faith कि हम market में invested रह सकें. So believe me, it works. And as we go through the next 3 or 4 stories at the end of the session, you will also tend to believe that it works. So this is nothing but what all of us say. 3 asset classes हैं, आप bond में लगा सकते हो, आप gold में लगा सकते हो, आप equity में लगा सकते हो. But time and again what we have seen is equities are the biggest compounders. Equity से ही आपका return बनता है. अगर हमने 10 साल गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में लगाया होता बिना किसी रिस्क लिए, हमने कोई लीप ऑफ फेथ नहीं ली होती अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो टुडे यू वुड हैव मेड अराउंड 6% रिटर्न इन द लास्ट 20 years, but you would not have been even able to beat inflation. आज की तारीख में इन्फ्लेशन 6.5-7% के आसपास चल रहा है. अगर हमको पिछले 20 साल में 6% का रिटर्न मिला है तो प्रैक्टिकली वी हैव जस्ट saved 100 rupees as 100 rupees. There is no investment, there is no wealth creation. So equity से ही I think wealth create होती है, but challenge है, it is easier said than done because our emotional biases और हमारा जो behavior है वो हमेशा हमको challenge करता रहता है. And this is what is reflected here. Howsoever we are convinced कि equity हमको सबसे अच्छा return देता है over a period of time, but this demonstrates the behavior of all of us sitting in this room. ये इंडिया की एक पिक्चर है, हम सब उसको रिप्रेजेंट करते हैं. 50% of the money is invested in real estate. And we heard from Chandra Prakash कि real estate के cycles कैसे चलते हैं, what is happening in China. But still, we believe this is the asset class जहाँ पे हमको return मिल सकता है. That is an assumption. And we are only 4.8% invested in equities. Again, if you look at it from another perspective, household savings जो हैं globally in all the countries, if you look at how different countries have their exposure to financial assets, again in India the challenge is we are at one of the lowest because we don't have that confidence, we don't have that leap of faith कि equities में लगाएंगे तो long term में हमको पैसा बनेगा. So today 14% of our household savings are in equities. अगर हम, we are not even talking of developed countries like a Canada or a Spain or a US. आप emerging market peers कोई देख लो, Taiwan 20%, Russia 26%,
China 29%. So even some of our emerging market peers, the investors there are more aware, they are taking more leap of faith कि equity में invest करेंगे तो पैसा बनेगा. But India में हम लोग वो अभी भी हमारे को वो confidence नहीं आता है. And which is why, because of this volatility. So this is again a 25-year chart of Indian markets on a year-on-year basis. अगर आप 25 साल में देखोगे तो 12% रिटर्न CAGR बनाया है अगर आप इन्वेस्टेड रहते फॉर 25 years. And out of that 6 years you have had negative returns, but 19 years you have had positive returns. But अगर मैं next slide दिखाता हूँ, so this is the whole emotional irrational behavior that we exhibit जब market volatile होता है. So this is again a period of last 15-16 years where you see कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स का पैसा किस टाइम पीरियड में आता है. तो अगर 2008 से 2010 की बात करते हैं, वी हैड सीन स्टीप करेक्शन आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बट वो टाइम पे पैसा हम लोग लगाने की बजाय बाहर निकालना शुरू कर दिए. उसके बाद नेक्स्ट 4 years 5 years मार्केट वॉज इन टाइम करेक्शन जोन, रिमेन्ड फ्लैट. इफ यू लुक एट द लाइट ब्लू बार, एंड वी स्टार्टेड पुलिंग आउट मनी. सो लीप ऑफ फेथ यहाँ पे हमारा नहीं था, एंड वी स्टार्टेड पुलिंग आउट मनी. एंड व्हाट दैट लेड टू, जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो आप देखिए कि 2018 में 1,74,000 crores ऑफ मनी गॉट इन्वेस्टेड. लास्ट ईयर मार्केट वॉज एट इट्स पीक एंड 2,90,000 crores ऑफ मनी गॉट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स. पैसा कब लगाना चाहिए था? जब मार्केट नीचे था. बट दैट टाइम वी वर नॉट इन्वेस्टिंग, वी आर ओनली इन्वेस्टिंग व्हेन markets are going up. So we have to kind of take care of this emotional cycle and come out of it. So with that, I think that was the first thing, that leap of faith लीजिए, invested रहिए, and that is what leads me to in the second story कि how to be consistent in your approach. And इसके लिए बहुत simple चीज़ है, जैसा कि चंद्र प्रकाश ने भी बोला in his last comments कि लमसम अगर मार्केट वोलेटाइल है अभी अगले 1-2 साल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए. बट SIP STP इज अ एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर यू टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ. तो यहाँ पे आई विल शेयर अ स्मॉल स्टोरी अगेन ऑफ अ पर्सन कॉल्ड माइलो. ये ग्रीस की स्टोरी है, ग्रीस की नहीं सॉरी इटली के एक नौजवान की स्टोरी है, कुछ 2,500 साल पहले की एक एंशिएंट स्टोरी. आई थॉट इट इज़ वेरी रेलेवेंट टू पिक इट अप एंड सी हाउ वी कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ थ्रू दिस स्टोरी. तो माइलो नाम का एक लड़का था इटली में, क्रोटोन शहर के अंदर. सो वो स्पोर्ट्स में था, तो उसने अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए एक तरीका निकाला कि भाई मैं कैसे, उस टाइम पे कोई जिम तो होते नहीं थे, अगर उसको अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है तो कुछ दिन पहले उसके गांव में एक काफ वॉज बॉर्न, एक बछड़ा पैदा हुआ, तो उसने उसको अपने कंधे पे उठाना शुरू किया. एवरी डे ही यूज्ड टू टेक दैट काफ on his shoulders and run. धीरे धीरे 4 साल तक वो ये करते रहे. Every day he used to put the calf on his back and run for some time. और 4 साल तक धीरे धीरे वो calf became a full bull and he was still able to carry that bull because वो धीरे 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 अपनी strength को बढ़ा रहे थे for 4 years. And he became one of the biggest wrestlers of his time. 2500 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे ओलंपिक गेम्स होते थे, बट हम उसको बोलते थे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स. ग्रीस में होते थे. फॉर 6 years ही वॉज कंटिन्यूअस रेसलिंग चैम्पियन जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ दैट ही हैड बिल्ट स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. धीरे 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 एक बछड़े को कंधे पे उठाते हुए. सो दैट्स द काइंड ऑफ अप्रोच, इफ यू हैव अ कंसिस्टेंट थिंग, इज वेयर यू कैन बिल्ड. स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट एंड देन कीप स्टेपिंग इट अप. कैसे कर सकते हैं ये हम? बहुत सिंपल है. SIP की हम बात कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अस, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ SIP, क्यों करना चाहिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, कैसे आपका वेल्थ क्रिएट होता है थ्रू एन SIP. बट उसी SIP के साथ अगर हम एक सिंपल फंडा लगा दें कि उसमें हम स्टेप अप जोड़ दें. मोस्ट ऑफ अस टुडे डू SIP बिकॉज हमारा रेगुलर कैश फ्लो है.
So if we have a regular cash flow, we are very sure of how much money that we can put in our SIP. एंड वी नो कि हमारा एनुअल कैश फ्लो हर साल बढ़ेगा अगर हम ग्रो कर रहे हैं, हम साल जॉब में हैं, इंक्रीमेंट होता है, बिजनेस में है, ग्रोथ हो रही है. सो उसका अगर एक स्मॉल स्टेप अप लगाएंगे तो यू कैन सी हाउ द वेल्थ मल्टीप्लाइज. यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिखाया है मैंने वो ये है, 25,000 रुपीज़ की आपने SIP करी फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स. तो अगर आपने सिंपल SIP किया तो यू वुड हैव इन्वेस्टेड 75 lakhs एज योर कॉर्पस ओवर दिस पीरियड. And that would have grown at an XIRR of 12.99% to 4.95 crores. बट यही पैसा अगर आपने एक स्टेप अप कर दिया होता कि भाई मैं पहले साल 25,000 रुपये का SIP किया है ऑटोमेटिकली, एंड दिस यू कैन डू नाउ ऑटोमेटिकली. आपको डिसाइड नहीं कर, मतलब आपको हर महीने या हर साल ये डिसीजन नहीं लेना है. स्टेप इट अप बाई 10%. सो नेक्स्ट मंथ कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 2,500 रुपये और बढ़ जाएगा, 27,500 हो जाएगा. उसके नेक्स्ट ईयर 31,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका. तो ये करते करते एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस आपका हो जाएगा 2.95 crores. बट लुक एट द वेल्थ दैट यू हैव क्रिएटेड बाय जस्ट डूइंग अ 10% स्टेप अप फॉर द सेम पीरियड. डबल हो गया. 4.95 crores has become 10.88 crores. So that's the kind of consistency, and starting small with a step up can help you. So it is very very simple. इक्विटी मार्केट से अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है हमको अपने गोल्स के लिए, SIP पहली बात तो कंटिन्यू रहनी चाहिए, स्टॉप नहीं होनी चाहिए. और उसमें अगर हम स्टेप अप करके चलेंगे तो वी कैन एक्सेलरेट आवर वेल्थ क्रिएशन जर्नी. So that takes me to my third story. Why does car need a brake? कार में ब्रेक क्यों होने चाहिए? एक्सीडेंट ना हो, हम कार को स्टॉप करना है तो कर सकते हैं. बट आई थिंक द बिगेस्ट रीजन दैट अ कार नीड्स अ ब्रेक is that it allows us to run the car much faster. तो अगर हमारे पास एक मर्सिडीज कार है जो कि 150-200 की रफ्तार पे चल सकती है, बट अगर कार में ब्रेक नहीं हो तो क्या होगा? हम शायद 5 किलोमीटर पर आवर पे चलाएंगे उस कार को, बिकॉज ब्रेक नहीं है. वी आर नॉट कॉन्फिडेंट वेदर वील बी एबल टू स्टॉप द कार और नॉट. And so, despite we have a car which can run at 150-200 kilometers per hour, but if you don't have the brake, you will not be able to take benefit of that. So similarly, we believe there are many brakes that we have in our life, whether it is our teachers, our parents, our colleagues, our friends, जो हमको बताते हैं कि सही डिसीजन लेना चाहिए, कभी रोकते हैं, कभी टोकते हैं, कभी सही दिशा दिखाते हैं. And those are the breaks which we believe are very very important in your investment journey also. क्योंकि इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगर ब्रेक्स नहीं होंगे तो एक्सीडेंट होना लाजमी है. सो उसके लिए वी बिलीव ये जो ब्रेक्स हैं वो आपको केवल एक बाउंड्री बनाते हैं, और वो बाउंड्री अगर बनती है तो यू आर मोर एबल टू टेक फ्रीडम विद दैट बाउंड्री. Within that boundary, then you know what freedom that you have. इसलिए ब्रेक्स होना बहुत ज़रूरी है. एंड वो ब्रेक्स कैसे होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में? While we saw the first chart in our first presentation, it is some 5 or 6 events from there I have captured here. World Trade Center 9/11, Global Financial Crisis 2008, COVID pandemic 2019, and current geopolitical crisis. If you look at markets have corrected, the Nifty 500, significant drawdowns. 2008 में 57-58% मार्केट नीचे गया, बट उसके बाद अगर हम रिकवरी देखते हैं 1 साल, 3 साल और 5 साल, यू लुक एट 91%, 17.5% एंड 17% CAGR ग्रोथ. सो मार्केट वोलेटिलिटी या करेक्शन भी ज़रूरी है फॉर 2 reasons. 1, इट अलाउज यू एंड इट एक्ट्स लाइक अ ब्रेक. सेकेंड, जो हमारा होल कॉन्सेप्ट है SIP का, वो कैसे काम करता है? वो एवरेजिंग पे काम करता है. तो अगर ये ब्रेक्स नहीं लगेंगे मार्केट के अंदर तो एवरेजिंग कभी होगी नहीं. सो दैट ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लाइफ उसमें ब्रेक्स होने चाहिए.
and any event. So obviously COVID pandemic, 38% market was down in 2020. Next year we saw the market was up 71%. Obviously 3-year and 5-year are yet to be done. 3-year की पिक्चर चंद्रकांत दे चुके हैं, तो आई एम नॉट श्योर वो क्वेश्चन मार्क में क्या रहेगा, माइनस की प्लस. बट 5-year में एटलीस्ट आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि वो प्लस में रहेगा. Then the other break we believe is again asset allocation भी करना बहुत ज़रूरी है. That we believe again is a good break to have in your investment journey, because all the researches that have happened, and maybe Krishna can allude to it, he's a trainer as well, कि 90% of your return actually comes from asset allocation. 90-95%. All researches tell that returns आते हैं asset allocation से, ना कि कौन से asset class में आपने invest किया, कितना return आपने कमाया. So it is very important, and I think what I have not put on the slide, but I would also want to call, there is another kind of a break that is required in our investment journey, और वो है to have a financial advisor. क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक है जो आपको सही समय पे आपकी हैंड होल्डिंग कर सकता है, आपको नेविगेट कर सकता है जब मार्केट वोलेटाइल है, आपके इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इमोशनल डिसीजंस जो होते हैं वो ओवरकम करने के लिए आई थिंक एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बहुत अच्छा ब्रेक होता है. सो विद दैट लेट मी मूव टू माय फोर्थ स्टोरी, which is the Pareto's principle of investing. I am sure यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, everybody would know Pareto principle क्या होता है. Most of the people would know. The young crowd, Pareto principle, no? So it's a kind of a 80-20 rule कि 80% of the output is determined by 20% of the input. तो आप जितना इनपुट लगा रहे हो उससे मैक्सिमम आपको रिजल्ट कैसे लेना है, दिस इज टिपिकली एन 80-20 काइंड ऑफ अ रूल. सो इफ आई वर टू कोरिलेट अगेन विद आवर इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल, आई वुड से अगर इस परेटो प्रिंसिपल को हमको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी से रिलेट करना है तो कितना पैसा आप लगा रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दैट आई बिलीव इज ओनली 20%. If I have to say, but आप सोचोगे कि मैं कितना पैसा लगा रहा हूँ, that should be 80% in determining my outcome or my investment outcome. But what I am saying is कितना पैसा आप लगा रहे हो वो 20% है आपका input. 80% जो output है आपका return का, that will come from your behavior. Because often what we have seen is कि while you will start with a journey with a objective, with a goal, but जहाँ volatility आता है, our decisions become irrational, they become more emotional, and we lose track of our goals. So it is wrong to say that the more you invest will give you the return, but I would say it is right to say the longer you invest will give you the return. एंड उसी के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डाला है आपको समझाने के लिए कि क्या डिफरेंस होता है राइट टाइम और लॉन्ग टाइम में और वैल्यू में. सो 2 फ्रेंड्स थे, रोहित एंड मोहित. दोनों ने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी डिसाइड किया कि हमको कितना पैसा कमाना है अपने रिटायरमेंट पे, और उसके हिसाब से उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए इंडिपेंडेंटली. तो पहला जो दोस्त था रोहित, उसने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया. ही वॉज मोर स्मार्ट, एंड आई एम श्योर आई सी मैनी यंग पीपल इन दिस क्राउड, सो प्लीज़ लिसन टू दिस स्टोरी वेरी केयरफुली. तो 5,000 रुपये सेविंग्स किया, 12% का रिटर्न आ रहा था. मैंने पहले भी स्लाइड पे दिखाया, 25-year निफ्टी रिटर्न वॉज 11.7. सो टू अज्यूम अ 12% रिटर्न आई थिंक इज़ फेयर. इन्वेस्टमेंट किया 55 साल तक, रिटायर होने के टाइम तक, और टोटल इन्वेस्टमेंट किया 18 lakhs. उसका वैल्यू कितना हुआ, 1.76 crores. फ्रॉम 25 to 55, 30 years, 30 साल इन्वेस्टमेंट किया, 5,000 रुपया पर मंथ लगाया, 1.76 crores उन्होंने बना लिया. एंड ही वॉज मोर ऑफ अ डिसिप्लिन एंड अ कंसिस्टेंट इन्वेस्टर.
जैसा कि मैंने आपको माइलो की स्टोरी में बताया। उसका जो दोस्त था मोहित, ही वॉज मोर ऑफ गाय की बाद में देख लेंगे, अभी क्या ज़रूरत है, अभी पैसा खर्च करते हैं, अभी ज़िंदगी जीनी है, जब समय आएगा तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेंगे। सो ही स्टार्टेड, बट ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 45 एंड ही सेड ओ मैं लेट हो गया हूँ तो मुझे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो मैंने बोला 80-20 का रूल, कितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो दैट डजेंट मेक अ डिफरेंस। तो ही ऑल्सो इन्वेस्टेड सेम 18 lakhs 15,000 रुपीज़ फॉर द नेक्स्ट 10 years बिकॉज उसको भी 55 साल पे ही अपना एंड करना था गोल। बट लुक एट द वैल्यू दैट ही कुड अर्न फॉर हिमसेल्फ, 35 lakhs। सो बहुत ज़रूरी है हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी कि हम जल्दी शुरुआत करें और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वेयर दिस होल बिहेवियर of our investment to stay long term and start early is very very important. So it does not matter how much you should invest. I think what matters is how long you have to be invested. So the same thing I put it another way which can help you understand कि ये impact क्या होता है, जितना आप अपना decision delay करते जाते हो ना उसका impact कितना होता है। अगर आपको 5 करोड़ रुपया सेविंग्स करना है एट द एज ऑफ 60 एंड यू हैव टू स्टार्ट एट द एज ऑफ 25, जो हमने रोहित के एग्जाम्पल में देखा। सबका एक टारगेट होगा कि हाँ 5 करोड़ बैंक में हुआ तो बहुत अच्छा हो गया, शायद रिटायर हो सकते हैं। मे बी नॉट फॉर एवरीबडी, किसी को 15 चाहिए होगा, किसी को 20 चाहिए होगा, बट 5 करोड़ अगर हो गया बैंक में तो आई कैन रिटायर पीसफुली, कैन मैनी पीपल कैन थिंक अबाउट इट। 12% का रिटर्न है। तो अगर 25 साल में आपने स्टार्ट किया था, यू हैड टू जस्ट इन्वेस्ट 7,700 रुपीज एवरी मंथ इन एन SIP टू गेट टू 5 crores। बट हर 5 साल जो आपने डिले किया कि 25 की जगह मैं अभी थोड़ा iPhone 14 खरीद लेता हूँ, अब मैं EV इलेक्ट्रॉनिक बाइक खरीद लेता हूँ, अब मैं कार खरीद लेता हूँ, फॉर एवरी 5 year डिले दैट यू विल डू योर अमाउंट डबल्स। 25 से 30 में आए तो 7,000 की जगह 14,000 करना पड़ेगा, 30 से 35 किया तो 14 की जगह 26 करना पड़ेगा, 35 से 45 ईयर्स अगर हम मोहित बन गए तो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा 5 करोड़ लिखने के लिए एवरी मंथ। सो आई थिंक एज अर्ली एज यू कैन स्टार्ट इज द की, and the delay or discontinuing SIP is the worst thing that you can do to your investment. मार्केट वोलेटाइल होता है, हम फिर सोचते हैं अरे SIP बंद कर देते हैं, जब मार्केट ठीक हो जाएगा फिर चालू कर लेंगे। यू लूज योर कंपाउंडिंग ऑल टुगेदर। तो SIP करिए, स्टेप अप करिए और उसको कंटिन्यू रखिए, डिसकंटिन्यू मत करिए। सो विद दैट लेट मी कम टू माई लास्ट स्टोरी एंड दिस इज़ लाइक वी अगेन बिलीव कि हम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो एक और बहुत बड़ा डिलेमा रहता है कि बस मैंने X फंड में लगाया था, मेरे नेबर ने Y फंड में लगाया था, उसके फंड ने मेरे फंड से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया, एम आई डूइंग द राइट थिंग। आई थिंक कंपैरिजन इज़ कंप्लीट थीफ ऑफ योर जॉय। जितना आप कंपेयर करोगे उतना आप लूज़ करोगे अपना पेशेंस, अपना पीस ऑफ माइंड। एंड उसी के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। तो इज़ अ स्टोरी ऑफ अ क्रो। सो ही वॉज वेरी सैडेंड कि बस मैं एक काला कौआ हूँ, क्रो, ब्लैक क्रो, नोबडी लाइक्स मी, वेर एवर आई गो एवरीबडी टेल्स मी टू गो अवे। सो ही वन डे वेंट टू अ स्वान and said कि यार you are such a beautiful bird, you would be so happy, everybody looks at you because you are so beautiful, nobody looks at me. So the swan turned back to the crow and said, yeah I know I am beautiful and people look at me, but एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही I was swimming across the lake and पेड़ पे मैंने I saw 2 parrots and I saw them that they were more colorful and I thought they were more beautiful than me. So I don't think so that I am beautiful. I saw 2 parrots there and I thought कि वो मेरे से ज़्यादा सुंदर हैं, इसलिए he said
So the crow went to the parrot and said, "Ki you should be very happy. You are the most colorful bird, and everybody looks at you." So he said, "Nah, I also thought ki I have multiple colors, and everybody is happy to look at me. But एक दिन मैंने peacock को देखा, and I found that he has more colors than me. And I said कि बस he is the most happiest bird. I am not the happiest bird because उनके पास मेरे से ज़्यादा रंग है. The parrot, peacock is more colorful than me." So the crow went to the peacock and said कि he went to the zoo to see the peacock, and he said, "You should be the happiest bird in this world. Everybody comes and look at you. So many people have come here to watch you." So the peacock said, "Yes, I also thought that I am most beautiful, I am the most colorful. But if you look at, because of my beauty, I am trapped in this cage and people are looking at me. I wish I was a crow and I would have been free to fly everywhere." तो सो कंपैरिजन करने की कोई अंत नहीं है. एंड हम लोग पहले वो ऐड आता था ना निरमा का, उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे, उसका घर मेरे से बड़ा कैसे. सो कंपैरिजन का कोई अंत नहीं है. एंड सो वेरी क्विकली last few slides that I would want to show you, and this is again the investment behavior that we exhibit when we invest. You will never be able to consistently invest in a fund which is number one. So what I have done here is I have looked at 25 large cap funds, 25 large cap funds for the last 10 years, and looked at कि कितने ऐसे फंड थे पिछले 10 साल में, 25 funds which were ranked number one in a particular year. किसी भी एक साल में उनकी रैंक नंबर 1 थी. सो टू माई सरप्राइज 25 फंड देखने के बाद केवल 7 फंड ऐसे थे जिनका रैंक नंबर 1 आया. ऑल अदर 18, ऐसा नहीं कि बाकी के 18 फंड खराब थे, दे वर ऑल्सो गुड इन देयर ओन वे. बट इफ आई हैव टू टेक दिस एज अ फिल्टर कि रैंक नंबर 1 10 साल में किसी का आया कि नहीं आया, तो 7 ही फंड थे. एंड उसमें भी अगर आप देखोगे जो फर्स्ट फंड है, फंड नंबर ए, दैट वाज नंबर 1 फॉर 3 years. फंड नंबर बी वाज नंबर 1 फॉर 2 years आउट ऑफ लास्ट 10 years, एंड द रेस्ट 5 वर नंबर 1 जस्ट फॉर 1 year ईच. बट विद इन दैट अगर आप फंड ए की स्टोरी देखोगे और जर्नी देखोगे, 6, 1, 14, 24, 3, 1, 2, 23. सो winners rotate is a hard fact. Whether it is looking at the fund that you are investing in, whether it is the market cap that you are looking at, कि large cap में invest करें, कि mid cap में invest करें, कि small cap में invest करें, you should have your asset allocation. Winners will keep rotating as long as through an advisor, financial advisor, you are able to create your asset allocation. That is the more key. The more you diversify, आपका चांसेस रिटर्न आने का उतना बेटर होगा. रादर देन चेजिंग फंड ए कि वही टॉप परफॉर्मिंग था उसमें मैं इन्वेस्ट करूं, यू शुड बी डाइवर्सिफाइंग. एंड सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट इंडिया इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट एंड यू शुड बी ओनली इन्वेस्टेड इन इंडिया. डाइवर्सिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे भी विनर्स रोटेट. अगर हम देखें इस चार्ट को, 13 years में 7 years US market in the last 13 years has been the best performing market. जितने लोग अगर बैठे हैं यहाँ पे और मैंने ये स्लाइड नहीं डाला होता और पूछा होता पिछले 13 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट कौन सा रहा है, तो एवरीबडी वुड हैव सेड इंडिया. दैट्स व्हाट वी बिलीव. बट डेटा कुछ और ही बता रहा है. 7 साल US, 4 years इंडिया, 2 years चाइना. सो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है. And similarly, if you look at winners rotate in terms of asset class. So you should be investing across asset class also at different points of time basis your return and risk profile. So the biggest challenge to get optimal return, do you agree it's market volatility? हम return क्यों नहीं कमाते हैं? Is it market volatility? No? So a lot of people are already getting the message that I wanted to send across
कि it is the investment behavior which is the biggest challenge in creating returns. It is not market volatility. And what happens is, like I said, अगर emotional behavior होगा, emotional investor हैं हम, हमको hand holding सही से नहीं मिला है, ब्रेक सही से नहीं लगा पाए हैं, स्टेप अप नहीं कर पाए हैं या लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाए हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू डू, तो जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, जो हमारे स्कीम का रिटर्न आता है और जो इन्वेस्टर अपना रिटर्न बनाता है, उसमें हमेशा गैप रहेगा. So it is very important to take away your emotional biases and take more rational decisions when you are investing in mutual funds. So just to sum up, last slide, if you are rich, you can buy anything that you want. But if you are wealthy, you can do anything that you want. Choice आपका है कि आपको जो चाहिए वो खरीदना है या आपको वो करना है जो आप करना चाहते हो. So we believe if you are able to create wealth for yourself rather than saying कि मैं 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का टारगेट रखता हूँ, if you are able to create wealth, you will be able to do whatever you want. So 5 key takeaways that we have. Equity is one of the best wealth compounders. Ignore noise and invest for long term. Don't time the market. Stay invested. Diversify not just in assets but across geographies also. And invest regularly and step it up. Because the rich have money and the wealthy have time. So आज की तारीख में मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो पैसा नहीं है, टाइम है. हमको टाइम नहीं मिलता है. So be wealthy, create long-term wealth by being a disciplined investor and have time for yourself to enjoy that wealth. Thank you. Yeah. Thank you, Avnish sir. Wonderful. It is always, I love that analogies with stories and investment. It's a wonderful way to actually educate. I would now request PIFA members Amol Koparde and Bipin Sethia to please come forward and felicitate Mr. Avnish Bhatnagar. Can we have a big round of applause, please?